Oh, yes. Hello, everyone. Hello and good evening, and a very warm welcome today in today's session of Dil Ke Doubts. I am Neeraj Sharma, and I will be your host for this evening. So, before we start, let me introduce myself. Uh, I am a businessman working in information technology field, and my association with HHIF is for around last 2 years, and I have been volunteering for HIF uh, on health issues along with Ram and other team members. And it has been a pleasure that I got myself introduced to Ram a few years ago. And it is certainly uh, a privilege to me as well. So, this Dil Ke Doubt session for today will focus on understanding body signals after a heart procedure, helping patients and families distinguish normal recovery from warning signs. Through an interactive discussion, this session will also address safe movement, long-term recovery, and practical steps for strengthening heart health. So, let me first introduce you to SOC VPR. So, today's session is organized in collaboration with the Society for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, that is SOC VPR. SOC VPR is an important group working to strengthen patient care and recovery systems across India. So together with HHIF, they are helping us create safer, stronger recovery journeys for patients and family. तो अब मैं आपको हमारे आज के स्पीकर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा. It is my privilege to introduce our speaker. Today we have with us Dr. Prajakta Sahasrabudhe. She is a professor and head of the Cardiovascular and Respiratory Physiotherapy Department at Sancheti Institute for Orthopedics and Rehabilitation College of Physiotherapy, Pune. She is an outstanding award-winning clinical academician with recognized research contributions and extensive experience in cardiac rehabilitation and heart health education. So, Dr. Sesar Budde, I would like to invite you to share your thoughts about this session. You can please take on from here. Thank you so much, Mr. Neeraj. So, first of all, I would like to congratulate HHIF on this wonderful initiative that patients, especially when we are speaking about lifestyle diseases, when patients are dealing with these diseases lifelong. So, it is surviving with the disease, right? We are going to do everything when disease is there and we are going to relearn doing certain things. So जिसमें काफी support की जरूरत होती है, and it is not just the support from your immediate family but the people who are suffering from the similar things, and when they are achieving great, so that is also an additional motivation. So आप जो ये success stories लोगों के सामने लाते हैं and positive education के through this support group, so this is a wonderful initiative. So really congratulations on that. And about this particular topic, know your signs and strengthen your heart. So this is very close to my heart because whenever we are trying to educate our patients, they have a lot of doubts, they have a lot of fears, anxieties कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. And somewhere the root cause is that they do not identify the signs and symptoms जिसके थ्रू वो गुजर रहे हैं कि sometimes these fears are unnecessary. बिकॉज थोड़ा भी अगर चेस्ट पेन हुआ, शायद वो इंडाइजेशन की वजह से है या कोई और चीज की वजह से, माइनर सोरनेस है जो मसल ओरिजिन में है, लेकिन बिकॉज दे हैड अ बैड हिस्ट्री दे सडनली जम्प टू अ कंक्लूजन एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अदर एक्सट्रीम्स में देर आर पीपल जिनको लगता है कि दे आर कंप्लीटली बेटर बिकॉज दे आर टेकिंग मेडिकेशंस, दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग, तो अभी रिलैप्स हो ही नहीं सकता है. तो somewhere we need to balance, and iska solution hai to identify the signs and symptoms correctly at the right time and to take the action. So my approach for towards today's topic is going to be from at various stages of recovery. Patient अपने signs and symptoms को कैसे review कर सकते हैं, कब help के लिए कब help मांगनी है, और when it is okay you can do little bit wait and watch.
And Cup, it is completely okay. You can routinely do your activities and you don't need to worry about. So that is how my approach is going to be for today's session. Thank you, ma'am. Please elaborate further. Mm. Okay, so What signs to look I after? Sorry. directly address the questions which we have received? So should I read out the Sure. questions and then I uh, will read out the questions from all the participants, and you can simply answer the question. okay, So, sure. the first thing is knowing the signs, what to watch and what not to ignore. क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उसके प्रोसीजर के बाद में कौन से साइंस है जिनको हमने थोड़ा ध्यान से देखना है, किन चीजों को इग्नोर नहीं करना है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हार्ट प्रोसीजर व्हिच बॉडी साइंस शुड पेशेंट्स एंड फैमिलीज नेवर इग्नोर. इस तरह के जो साइंस है वो हमें इग्नोर कभी भी नहीं करने हैं पेशेंट्स और फैमिलीज को. Okay, great. So, of course, because heart disease का diagnosis हुआ है, so that impending risk is always there, especially if we are not following a certain lifestyle या जो भी हमसे expected है, whether it is with respect to risk factor control है, जो comorbidities होती है, जैसे diabetes and hypertension, वो अगर control में नहीं है. So, in such scenarios, अगर रिलैप्स होता है तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. इसमें से जो रेड फ्लैग्स हम कहते हैं कि दीज साइंस वी शुड नॉट इग्नोर एट ऑल. एंड शायद कुछ मामूली सा ही हो लेकिन कुछ ज्यादा सिवियर हो भी सकता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज साइंस. ऑफ कोर्स हार्ट से रिलेटेड जो भी पेन होता है वो चेस्ट पेन, most of the heart patients are aware अगर उनका disease symptomatic रहा है तो, so they are very well aware of what kind of chest pain it is. Usually it is behind the breastbone or in the center of the chest. And few patients may have certain variants कि जैसे shoulder में, left shoulder में pain है, few patients who have pain in the jaw, few patients have pain in the upper back. A lot of diabetic patients, they may have silent chest pain and it may be perceived as a heartburn कि जलन सी लगती है, मतलब एसिडिटी के तौर पे वो सिम्टम मिस भी हो सकता है. क्यों कुछ पेशेंट को पेन बिल्कुल ही नहीं होता है, ब्रेथलेस होता है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ विदाउट डूइंग एनीथिंग. नॉर्मली अगर हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेट्स से 2 floors 3, एवरीबडी गेट्स ब्रेथलेस. लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आप बैठे हो एंड आपको ब्रेथलेस हो रहा है, या फिर सडनली बहुत सारी स्वेटिंग हो रही है, पैल्पिटेशंस मतलब दिल की धड़कन आपको खुद को सुनाई देती है. तो अगर ये सिम्टम्स है तो मोस्ट लाइकली इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट. अगर आपको आउट ऑफ नोवेयर सडनली डिजीनेस लगता है, आप बैठे हो, नो मूवमेंट, एंड सडनली यू फील डिजी, तो अगेन इट इज समथिंग विच हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, स्पेशली इन द हाई रिस्क पेशेंट्स जिनमें हार्ट डिसीज का हिस्ट्री रह चुका है. उनमें this could be related to heart, not necessarily every dizziness. It could be, there could be multiple pathologies जिसमें dizziness आ सकता है, but because there is a high risk of heart disease, तो it has to be investigated further. तो अगर ये सिम्टम्स या साइंस आते हैं तो कभी भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज. So and irrespective of the procedure, I would say, because वैसे अगर हम देखा जाए तो आफ्टर प्रोसीजर या मेडिकली मैनेज डिसीज है, मतलब मेडिसिन दे के सिम्टम्स कंट्रोल में रखे हैं, या एंजियोप्लास्टी हुई है, या एंजियोग्राफी हुई है, या बाईपास सर्जरी हुई है, जो भी हुआ है. लेकिन वार्निंग साइंस तब आते हैं जब यूजुअली वापस से हार्ट की जो आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेजेस वापस से आ जाते हैं, और जिसकी वजह से खून हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है. And because of that, these symptoms come. So it is a sign that probably there is a relapse of the disease, and which has to be caught up early so that we do not go to a fatal event. And that's why it is important to identify these signs. इसको कभी ignore नहीं करना है. मैं खुद भी एक हार्ट पेशेंट रह चुका हूँ पिछले 10 सालों से, एंड आई हैव बीन थ्रू CABG into 3. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फॉर द फर्स्ट 2 or 3 years आई हैड सम सेंसेशंस गोइंग ऑन अराउंड माय चेस्ट. तो ऐसा लगता था कि कुछ मूवमेंट है, कुछ हल्का सा पेन है. तो इज इट नॉर्मल फॉर पेशेंट्स आफ्टर CABG?
See, CABG is a open heart procedure. तो हार्ट तक पहुंच के उस पे ऑपरेट करने के लिए जो चेस्ट का बोन होता है उसको कट करते हैं सेंटर में, एंड इट टेक्स सम टाइम फॉर द हीलिंग, एंड सर्जन जो होता है वो बीच में काट के जो रिब केज होता है उसको रिट्रैक्ट कर देता है. दैट्स हाउ दे रीच द हार्ट. So there are some minor strains which are normal at the upper back, even in the front of the chest. Some kind of movement till the bone heals. That is definitely first 3 to 4 months. तब तक वो काफी नॉर्मल है. Some amount of soreness because sutures वहां पे होते हैं. जब जख्म भर जाता है तो धीरे धीरे सूखता है, उसकी वजह से जो stretch kind of pain होता है. Some amount of soreness which is absolutely normal. तो इफ इट इज सुपरफिशियल, आप कैसे जान सकते हो कि इट इज सुपरफिशियल? यू कैन प्रेस ऑन टू द वुंड. इफ द पेन इज इंक्रीज्ड, सो दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस. तो शायद वो मसल या बोन की वजह से है एंड नॉट बिकॉज ऑफ द heart problem or relapse of the heart problem. So immediately after the surgery, maybe 6 months, few people have delayed healing at the sternum. तो उनमें वो पेन जो localized है वो कुछ समय तक रह सकता है. वेरी टिपिकल ऑफ कार्डियक पेन इज दैट इट इंक्रीजेस विद एक्टिविटीज. आप कोई भी एक्सर्शन करने की कोशिश करो तो द पेन इंक्रीजेस विद दैट. वेरएज अगर ये मसल या बोन की वजह से पेन है तो इट इज विद द इंक्रीज प्रेशर इन द चेस्ट. मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉफ और मूव सडनली तो तभी वो पेन बढ़ता है. तो दिस इज एन इंडिकेटर कि वेदर ये हार्ट की वजह से है या कार्डियक इन ओरिजिन है, या इज इट मस्कुलोस्केलेटल, दैट इज बोन एंड मसल्स की वजह से है, पोस्ट सर्जिकल है. Okay. So our next question is, what symptoms are common during recovery and they usually settle with time? कौन से ऐसे symptoms हैं जो कि हमारे रिकवरी के टाइम में बहुत कॉमनली हमें महसूस हो सकते हैं और थोड़े टाइम के बाद में वो खत्म भी हो जाते हैं? सबसे बड़ा सिम्टम है एंजाइटी. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फील लॉट ऑफ एंजाइटी बिकॉज उनके माइंड में वो एक फियर रहता है. एंड विद सच डिस्कशंस विथ प्रॉपर एजुकेशंस वो काफी हद तक कम हो सकता है. बट ऑफ कोर्स देयर आर पर्सनालिटीज जो हम टाइप ए पर्सनालिटीज बोलते हैं, द पीपल हु वरी अ लिटिल बिट मोर. तो उनको थोड़ा सा काउंसिल करना, व्हेन दे आर मीटिंग द डॉक्टर, उनको थोड़ा पैसिफाई करना जरूरी होता है. So this is something, and out of this anxiety and fear, many people are not willing to engage into physical activity. उनके माइंड में वो फियर है बिकॉज सिम्टम पैटर्न अगर शुरू में हम देखते हैं तो इट इज ऑल्सो सिमिलर दैट विद एक्टिविटी द पेन इंक्रीजेस, विच इज वेरी टिपिकल ऑफ चेस्ट पेन. तो दैट समवेयर स्टेज इन द माइंड एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी अप्रीहेंसिव. तो वो फियर निकालना उनके माइंड से बहुत जरूरी होता है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी आर डूइंग फेज 1 कार्डियक रिहैबिलिटेशन, पेशेंट एजुकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी फोकस ऑन की. एंड इसीलिए ये रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम जो काफी पेशेंट्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स में पाया जाता है, इज फटीग और एग्जॉशन. ओके, विच इज अगर मॉडरेशन में है तो इट इज नॉर्मल. बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन में है तो इट कैन बी अ वार्निंग साइन या रेड फ्लैग ऑल्सो, कि सडनली फटीग आ गया तो दैट कुड बी अ वार्निंग साइन ऑल्सो. बट अगर मॉडरेशन में है तो जैसे हार्ट का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब जो प्योर ब्लड है, जो लंग्स ऑक्सीजनेट करते हैं, उसको और अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना. तो इसका मतलब हमारे हाथ के पैर के जो मसल्स होते हैं वहां पे भी खून पंप करने का काम हार्ट करता है. तो बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज जब ये कम हो जाता है कैपेसिटी हार्ट का, एंड इट ग्रेजुअली रिकवर्स. तो इन द बिगिनिंग फेज जब वो खून पहुंच नहीं पाता है एंड तक, तो इट इज नॉर्मल फॉर द पेशेंट्स टू फील एग्जॉशन ऑन द एक्टिविटीज. बट जैसे जैसे रिकवरी होती है वैसे वैसे वो फटीग भी रिकवर हो जाता है. एंड जैसे हमने इससे पहले बात की, स्पेशली इफ इट इज ओपन हार्ट सर्जरी, तो पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट या फिर बैक, अपर बैक, थोड़े से मसल्स का खिंचाव, या ओवरऑल बैक पेन, नेक पेन, these are common problems which are faced by patients, जिसको सिंपल एक्सरसाइजेस से, मोबिलिटी एक्सरसाइज से टैकल किया जा सकता है.
जी, लेकिन ये बताएं डॉक्टर साहब कि जो टायर्डनेस जो इसके बाद में हमें जो महसूस होती है पेशेंट्स को, तो वो अलार्मिंग सिचुएशन है या नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि जब डिसीज है जो अनट्रीटेड है, तो दैट इज अ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड एफिशिएंटली, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द ऑक्सीजन एट पेरिफेरी, मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से वो फटीग या एग्जॉशन है। तो जैसे जैसे रिकवरी होती है वैसे वैसे द फटीग रिड्यूसेस, सो इन द इनिशियल डेज स्पेशली, so that's why we start with minimal physical activities, and as patient tolerates, we gradually increase it over the period of time. So of course there is going to be some amount of exhaustion or fatigue, but वो usually with rest, maybe एक nap ले लिया, थोड़ा आराम कर लिया, तो उससे कम भी हो जाता है. So it responds to rest. So that is important, and इट इज यूजुअली मैनेजेबल. तो आपके जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज है या आप घर के घर में जो काम करते हैं, जैसे बेदिंग है, खुद के कपड़े पहनना है, घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, ये सब एक्टिविटीज में नहीं होता है. सो फटीग इज नॉट दैट सिवियर दैट योर बेसिक एडीएल्स, जिसे हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, वो हैम्पर नहीं होता है. एंड या सो बट अगर इससे कंटिन्यू रहता ज्यादा तो है कि देन बैठे बैठे बहुत जी, ज्यादा हो रहा है, आप सो के उठ रहे हो हाँ, लेकिन फिर भी आपको थकान सी लग रही है, या इट इज एसोसिएटेड विथ एनी अदर सिम्टम्स, जैसे बहुत ज्यादा फटीग है एंड सडनली बहुत स्वेटिंग भी हो रहा है, सडनली ब्रेथलेसनेस हो रहा है, या फिर चेस्ट पेन वापस से हो रहा है, तो देन इट इज डेफिनेटली अलार्मिंग. देन इट इज समथिंग व्हिच वी शुड नॉट इग्नोर. तो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ प्रपोर्शन फटीग या एग्जॉशन, जो रेड फ्लैग ही है और जिसको डेफिनेटली एज अ वार्निंग साइन मान के आपके कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन है उसको दिखाना चाहिए उसे. हमें इन सिम्टम्स को जो हमने लास्ट में डिस्कस किया बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है और तुरंत अपने नजदीकी ईआर में जाकर के उसको चेकअप करवाना है. तो मैम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन कैन पेशेंट सेफली स्टार्ट वॉकिंग और स्टार्ट लाइट एक्टिविटी आफ्टर हार्ट प्रोसीजर? कितना टाइम हमें देना चाहिए अपनी रूटीन वॉकिंग को स्टार्ट करने में, लाइट एक्टिविटी को स्टार्ट करने अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नेक्स्ट डे, एज अर्ली एज नेक्स्ट डे. मतलब अगर बाईपास भी हुआ है, एंजियोप्लास्टी भी हुआ है, या फिर हार्ट अटैक था जिसको वो इंजेक्शन देके, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन दिया है, जो भी मेथड है, अगर कोई इम्पेंडिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे हार्ट फेलियर इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिससे हार्ट रिकवरी थोड़ा स्लो होता है, तो अगर ये सब नहीं है तो वी चेक द पेशेंट, एंड दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डन. आप खुद से नहीं कर सकते हैं. It has to be under a trained physiotherapist that we have a screening criteria. हम देखते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट कैसा है, रिदम कैसा है, रेगुलर है या नहीं है, कुछ बाकी के कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, हार्ट फेलियर है या नहीं है, क्या पेशेंट मिनिमल एक्टिविटी टॉलरेट कर पाएगा. लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं है ना, तो वी कैन स्टार्ट विद इन 24 आवर्स बेसिक फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आउट ऑफ बेड से चेयर पे आके बैठना, या अराउंड द चेयर थोड़ा बहुत एक 10 to 15 meters चलना, which is sufficient so that patient can get up and go to the bathroom, use the bathroom. उतना तो कम से कम वो कर ही सकते हैं, and then gradually it has to be mobilized. So hence in the beginning the activity has to be supervised. So we decide whenever I mobilize patient in ICU, तो आई मॉनिटर कि पेशेंट ने मिनिमल एक्टिविटी किया, उसके ऊपर मतलब एक्टिविटी करने के बाद पेशेंट का हार्ट रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा, कोई अरिथमियाज यानी कुछ अबनॉर्मल रिदम्स तो नहीं थे. और अगर ये सब नहीं है तो देन आई कंसिडर द एक्टिविटी टू बी सेफ एंड आई कैन गो फॉर अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट एक्टिविटी. एंड बाय द एंड पेशेंट गेट्स डिस्चार्ज. हमारा यूजुअली ये एम होता है कि पेशेंट खुद से 150 to 200 मीटर्स का डिस्टेंस चल पाए, या एक माला चढ़ के, मतलब 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर चढ़ के आराम से जा पाए, जो उनको घर में रिक्वायर्ड होता है. व्हेन दे गेट डिस्चार्ज, दैट इज द बेयर मिनिमम दे आर एक्सपेक्टेड टू डू. तो एटलीस्ट उतना तो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है
So unless specified otherwise, you can start the physical activity the next day. जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो एक ट्रॉमा से निकले हुए होते हैं, तो उनको ये लगता है कि अभी हम बिल्कुल ही मिनिमम एफर्ट्स करें, उठे ही नहीं, लेटे रहें, और जो पेशेंट के जो केयर गिवर्स होते हैं या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी बात-बात पर उनको कहते हैं कि नहीं अभी आप उठिए मत, अभी आप बैठे रहिए, आपको ठंड में बाहर नहीं निकलना है, पैर नीचे नहीं लटकाने हैं। तो ये कई तरह के फैक्ट्स होते हैं जो रोकते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ अगर समझाना चाहें केयर गिवर्स को? So sir, मुझे ऐसा लगता है this is all about the awareness of the treating physician और the entire healthcare team. Patient कितना aware है about cardiac rehab and safety procedures and family patient के rehabilitation में शुरू से कितना involved रहा है, मतलब डॉक्टर्स काउंसलिंग में क्या पेशेंट के रिलेटिव जो या प्राइमरी केयर गिवर या इनफॉर्मल केयर गिवर हम जिसे बोलते हैं विच आर नेसेसरीली द फैमिली मेंबर्स, तो वो कितना इन्वॉल्व रहे हैं। मतलब हम पेशेंट को तो एजुकेट करते हैं वार्ड में या आईसीयू में जाते हैं तभी, लेकिन शुरू में क्या पेशेंट के रिलेटिव को या इनफॉर्मल केयर गिवर को भी ये इम्पोर्टेंस समझाया गया था? आर दे अवेयर अबाउट इट? सो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट बिकॉज इवेंचुअली पेशेंट को घर जाना है, वहां पे थ्रू आउट द टाइम सुपरविजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं होने वाले हैं पुश द पेशेंट ऑल द टाइम, नहीं आपके चलने का टाइम हो गया चलिए, तो वहां पे आपके फैमिली मेंबर्स है, उनको ही आपको मोटिवेट या इंकरेज करना है। तो इफ दे आर ओवर प्रोटेक्टिव तो दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। एंड अगर मैं ओवरऑल अवेयरनेस की बात करने की कोशिश करूं, इन द बिगनिंग माय फादर इज आल्सो अ सर्वाइवर, मतलब आई थिंक सम 20 years back he had his first angioplasty, so that time he had too many restrictions कि 2 महीने या 3 महीने के लिए बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, घर में भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, बट नाउ he had a repeat angioplasty 6 months ago, but after that he was advised to start movements and start ambulation the next day, right? So it depends a lot on what kind of research, what kind of guidelines are there. So current guidelines जो है they favor immediate physical activity. आप जितना जल्दी physical activity start करा सको उतना early recovery patient में आप देख सकते हो। अदरवाइज स्पेशली अगर ऑपरेटेड पेशेंट्स है, वो बेड में रहेंगे, फिर चेस्ट इन्फेक्शन होंगे, ये सब कॉम्प्लिकेशन भी फिजिकल एक्टिविटी प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सब इन दिस होल प्रोसेस पेशेंट का काउंसलिंग एंड केयर गिवर का काउंसलिंग या एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, वेयर फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस दोनों को समझाना जरूरी है। काफी अच्छा इंसाइट दिया आपने इस बात पे, लेकिन व्हाट साइंस ड्यूरिंग एक्टिविटी टेल यू टू स्लो डाउन और स्टॉप, कि हमें कैसे पता लगे कि बहुत हो चुका, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है, या और हमें भी रिक्वायरमेंट है एफर्ट्स करने की? In the initial phases, hospital में it is going to be ICU या फिर step down unit में your activities या ambulation जो है that will be strictly under supervision of an exercise specialist या physiotherapist, and वहां से जब आप discharge करके जाते हो तो I know for the fact that कि these activities are safer for you. सो मुझे पता है बिकॉज मैंने वो 3 या 4 या 5 दिन तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है वो एक्टिविटीज करते हुए, तो मुझे पता है कि हार्ट रेट डजंट चेंज मच, ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स इज प्रीटी स्टेबल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। आप 150-100 मीटर्स चलने के बाद देयर इज नो प्रॉब्लम। सो व्हेन वी गिव डिस्चार्ज एजुकेशन टू द पेशेंट, तो हम उनको बोलते हैं कि क्या आपके डूज है, क्या डोंट्स है। जैसे अगर बाईपास सर्जरी हुआ है तो बोन इज स्टिल नॉट हील्ड, तो इन दैट केस पुलिंग पुशिंग इज नॉट अलाउड। तो अगर कोई भी पेन होता है या फिर आपको ऐसे लगता है कि बहुत अनड्यू मूवमेंट हो रहा है ब्रेस्ट बोन के यहाँ पे, तो देन यू नीड टू मीट योर कार्डियक सर्जन टू चेक कि वो जो फिक्सेशन है बाद में उसको वायर से बांध देते हैं बोन को, तो वो ठीक है कि नहीं। बट अदरवाइज आई थिंक जो इंस्ट्रक्शंस आपको फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड दी गई है, इफ यू आर फॉलोइंग दैट, जनरली वी कंसिडर द सेफ्टी। अगर पेशेंट बहुत एंशियस है या फिर द फैमिली इज वेरी एंशियस, देन वी एडवाइज दैट कि यू कैन गेट अ होम हेल्थ फिजियो
जो आपको घर पे थोड़ा सा like they can support you rather than monitor you and and facilitate the recovery of the patient. और अगर पेशेंट खुद से कर रहा है तो अगेन द सेम थिंग दैट डिजीनेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. इफ देर इज टू मच स्वेटिंग तो दैट इज अ नो नो. तो ये जो हमने डिस्कस किए रेड फ्लैग साइंस की, चेस्ट पेन, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव ब्रेथलेसनेस, लेग क्रैम्प्स अगर है, डिजीनेस है, तो देन दैट इज डेफिनेटली अ वार्निंग साइन. एंड हम यूजुअली पेशेंट्स को खुद का पल्स रेट लेना सिखाते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज. तो वो खुद का पल्स रेट pre and post exercises they can check and it should not be more than जो भी उनको लिमिट दिया गया. यूजुअली वी गिव द लिमिट ऑफ व्हाटएवर इज एट रेस्ट +20 या +30 डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. दिस मैनुअल मेथड वर्क्स. पल्स लेना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट अगर पेशेंट को नहीं आ रहा है तो नाउअडेज देयर आर लॉट ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइसेस व्हिच आर अवेलेबल, जैसे एप्पल वॉच होता है या फिटबिट के डिवाइसेस है. कुछ नहीं तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, लेकिन एक आपको रफ आइडिया तो दे ही देता है कि हार्ट रेट क्या है पेशेंट. तो हार्ट रेट इज वन थिंग विच वी नीड टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर एंड कीप इट इन अ रेंज. एंड द रेड फ्लैग साइंस, तो इसमें से अगर कुछ भी है तो देन इट इज अ वार्निंग साइन कि मुझे रुकना है एंड रिपोर्ट करना है. तो अब हम उस सेक्शन पे आते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ चुका है और बाद का उसका समय निकल रहा है, तो उसको अपने हार्ट को स्ट्रेंथन करना है. उसको ही नीड्स टू नाउ गो बियॉन्ड मेडिसिन. सो Right. हाउ डज रेगुलर गाइडेड एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स द हार्ट आफ्टर द प्रोसीजर? Okay. So, with any kind of heart disease, because the primary pathology lies with the heart, so the heart ka capacity to pump itself is reduced. Second, because of that pain, fear, whatever is there, patient reduces their own activity, and because of that, there is further deconditioning. मतलब पहले सिर्फ हार्ट में प्रॉब्लम था, अभी पेरिफेरल मसल्स में भी प्रॉब्लम है कि वो जो भी ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे. तो दिस सेकेंडरी डिसफंक्शन डेवलप्स एट द मसल लेवल. तो व्हेन वी स्टार्ट ट्रेनिंग द पर्सन, of course heart is recovering, so heart is going to gain better efficiency, and through training muscles will also relearn to utilize the oxygen, and that's how the supervised graded mobilization या graded exercises are going to help the patient to recover. See, when the heart is in the delicate phase in the beginning, we cannot load the heart too much. ओके, बट इसका मतलब ये भी नहीं, अगर हम उसको चैलेंज नहीं देंगे तो वो कभी रिकवर भी नहीं करेगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलस वी आर गिविंग. सो इट हैज टू बी अ वेड स्टिमुलस, मतलब इट हैज टू बी सेफ ऑल्सो एंड इट हैज टू बी बेनिफिशियल ऑल्सो. सो एंड दैट्स व्हाई इन द इनिशियल फेज इट इज गोइंग टू बी एंटायरली सुपरवाइज, या वो हॉस्पिटल में हो वहां से घर पे जाके भी in a way it is supervised because you're reporting to your therapist, you're reporting your cardiac rehab team. एंड उसके बाद भी हम जब कैपेसिटी एनहांसमेंट की बात करते हैं तो टू एंश्योर द सेफ्टी एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि व्हाट इज द पेशेंट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, और उससे हम कितना स्टिमुलस देंगे तो इट विल इंक्रीज फर्दर. सो देयर आर गोइंग टू बी नेक्स्ट 12 to 24 सेशंस एटलीस्ट, जहां पे आपको कार्डियक रिहैबिलिटेशन ओपीडी में बुलाया जाएगा एंड a graded stimulus or challenge would be given so that your heart would adapt to it gradually. So and after that, if everything goes well, then it is going to be a long surveillance jahan pe some activity, it could be a recreational activity, it could be just treadmill walk, brisk walk, some target would be given and patient would follow it on daily basis. Since it is a lifestyle disease, physical activity has to be accommodated as a lifestyle change, and that's how whatever we are gaining would be maintained for a longer duration of time. आपने जो बताया उसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा. कई लोगों को लगता है कि हमारा प्रोसीजर हो गया, नाउ माय हार्ट इज फिक्स्ड एंड इट हैज गॉन इनटू रेमिशन की जो मेरी पहली स्टेट थी वापस उसमें आ गया हूँ. और कई लोग दूसरे वर्ड्स में जैसे बोले कि गाड़ी का कार्बोरेटर साफ कर देते हैं और वापस से वो गाड़ी एकदम बढ़िया चलने लग जाती है. तो लोगों का परसेप्शन ये होता है कि अब तो मेरा हार्ट वापस से जो पहले की कंडीशन में था उसमें आ गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ.
बार मेरी हीलिंग हो गई तो आई एम बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, और जो भी एक्टिविटीज मैं पहले कर रहा था वो कर सकता हूँ। तो इसमें लोगों को थोड़ा कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, अब आपकी जो कंडीशन है वो दैट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अ रीजनरेटिव डिजीज, ये बाद में भी बढ़ सकती है। तो इस बारे में आपके कुछ थॉट्स में? I think there are people are nowadays aware about the risk factors which are going to which are responsible for coronary heart disease, that is जहाँ पे coronary artery मतलब heart के blood vessels का blockage देखा जाता है. So इसमें कुछ factors जो है जैसे age है, that it happens, it any elderly person may have it. Family history है, males में या फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ज्यादातर देखा जाता है. अभी फॉर दीज थिंग्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कांस्टेंट फैक्टर्स. इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. बट देर आर अदर मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जैसे अगर एडिक्शन है, स्मोकिंग का हैबिट है, टोबैको चूइंग है, तो उसमें काउंसलिंग के थ्रू या फिर पीपल कैन जस्ट क्विट. हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, तो दैट कैन बी केप्ट अंडर चेक through regular surveillance and medications. Weight reduction can be done, lipids can be controlled, and of course, adopting a physically active lifestyle. These are very important when we speak about secondary prevention. मतलब disease हो चुका है, वापस ना हो इसके लिए these risk factors have to be kept under check. So अगर नहीं तो it can come back. There are so many people who adopt to this new lifestyle so beautifully, and they can, it is not a big hassle for them, it is just minor. ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ चीजें खानी ही नहीं है, या there are healthier options. Many people just do not know about it. Again, through proper nutritional counseling, या फिर physical activity के बारे में आपने कहा, many activities can be retrained, maybe not in the immediate phase, but I know people who run marathon after CABGs या PTCS. So वो level तक भी patient को train किया जा सकता है, but of course there has to be patient's will and there should not be any complications. तो आई थिंक जैसे हार्ट फेलियर में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट देन अदरवाइज आई थिंक 80% ऑफ द पीपल कैन बी ट्रेन्ड. और एक बात बताएं मैम कि अगर किसी के प्रोसीजर को टाइम हो चुका है और वो थोड़ा लेट फिजिकल एक्टिविटीज को शुरू करता है, मान लीजिए 3-4 साल बाद में, तो क्या वो सेम बेनिफिट उसको मिलेंगे जिसने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, या इट इज टू लेट फॉर हिम और हर टू गेन दी No, बेनिफिट्स? it's, as I mentioned, it is a lifestyle disease. At any stage you start, you're going to get the benefits. Whether you have a heart disease, you don't have a heart disease, you are going to get a benefit. जैसे मेरे फादर को है, there are very high chances that after certain age I might develop. So if I make my lifestyle healthy right now, there is going to be preventive strategy, right? I'm stopping heart disease from reoccurring or occurring at all. वैसे ही पेशेंट्स में आप अर्ली स्टार्ट करो तो यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट्स. अगर आप होने से पहले स्टार्ट करो, देयर इज गोइंग टू बी प्रिवेंशन. आप लेट स्टार्ट करो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बट अगर आप लेट स्टार्ट करो, आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्टार्ट करो, तो यू नीड टू डू अ क्विक स्क्रीनिंग कि व्हाट इज द स्टेटस. क्योंकि प्रोसीजर होके काफी टाइम हो गया ना, आपने अगर बीच में कुछ फॉलो नहीं किया है, अगेन यू आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स. देयर माइट बी रीअकरेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, देयर माइट बी ब्लॉकेजेस जो माइनर लेवल पे या मेजर लेवल पे वापस आ चुके हैं, तो उसका चेकिंग होना. कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे ईसीजी, इको करके या फिर स्ट्रेस टेस्ट करा के हमें पता चल सकता है कि व्हाट इज द करंट स्टेटस. तो वो करके देन अ पर्सन कैन engage into physical activity या exercise program. So there is no harm. आप कितना भी लेट स्टार्ट कर सकते हो, just do it under supervision. Don't, especially if it is a high risk individual. हम high risk क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको हो चुका है, इसका मतलब उनका टेंडेंसी है होने का, तो वापस भी आ सकता है अगर कुछ प्रिकॉशंस नहीं ली जाए. So in such a scenario, you have to start under supervision, and then we believe in empowering the patient, wherein patients can do it by themselves because they have to continue it as a part of their lifestyle. और किस तरह की एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो पेशेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं? कंटिन्यूएशन फेज में आप पूछ रहे हैं, मतलब आफ्टर
3, 4, 6 मैं months. I'm asking, yes, any kind of physical activity they can take on after the procedure. After the procedure, as I mentioned, supervised protocols जो है, that is going to be under the constrained environment of hospital या फिर physiotherapy department. तो वहाँ पे we can have treadmills, cycles. In the beginning, it could be just ward walking and bare minimum devices. After that, patients, when we are discharging them from phase 2 rehabilitation, तो unmonitored unsupervised phase में हम जब patient को लेके जाते हैं, तो depending on patient's age, capacity, उनका फंक्शनल कैपेसिटी कितना है, वो पहले कितना एक्टिव रह चुके हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी, अगर कोई टेक्निक या कोई स्पोर्ट में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इट कैन बी सिंपल एज ब्रिस्क वॉकिंग. अगर उनको if nowadays in urban areas there are a lot of people who follow badminton or some sport, so they can go back to that activity also. It is a group activity, group exercise also, तो वो social engagement भी हो जाता है, and it keeps them motivated as well. It's just that we have to ensure that कि whatever is required for that sport उतना उन्होंने achieve किया है कि नहीं. तो वो एडवाइस करने से पहले हम एक बार एक एक्सरसाइज टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैपेसिटी पेशेंट में है या नहीं है. So it can be strength, endurance. जनरल लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए रिस्क वॉकिंग या लाइट रनिंग वगैरह काफी सफिशिएंट है लोगों के लिए, विदाउट सुपरविजन. मतलब वो इजीली कर सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इजी टू अडॉप्ट एंड यूज. एंड I am myself doing strength training for last 5 years. So I have built my strength slowly and gradually, and obviously under supervision of my doctor. So I think it has benefited me a lot. So people can take on marathon running and strength training as well if they are properly supervised. Yes, absolutely. जी. और उसके बाद में हम इंटेंसिटी से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ लिविंग कैसे की जाए. तो हाउ कैन पेशेंट्स रीबिल्ड ट्रस्ट इन देयर बॉडी आफ्टर हार्ट इवेंट? क्या चीज उनको मोटिवेट कर सकती है? हाउ कैन दे रीबिल्ड देयर ट्रस्ट इन देयर बॉडी? With long-term diseases ना, problem is with adherence या consistency. मतलब शुरू में बहुत जैसे anxiety होता है, fear होता है, तो people are very rooted and नहीं, कुछ भी हो जाए, भले मैं ऑफिस मिस कर दूं लेकिन एक्सरसाइज मिस नहीं करना है. And gradually then when they become comfortable in their own skin, they know that कि now they are better, their disease is better. तो somewhere वो चला जाता है कि अरे एक हाथ बार खा लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक हाथ दिन अगर चीट डे एक्सरसाइज नहीं करूं तो क्या होगा. तो वो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 होते होते वो फिर बिल्कुल बंद पड़ जाता है. एंड दैट इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन. तो वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए जैसे हमने इससे पहले बात की, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर मेरे घर से मुझे सपोर्ट है ये सब चीज, जैसे स्पेशली फीमेल रिहैबिलिटेशन पार्टिसिपेशन इज वेरी पुअर. एंड क्यों? बिकॉज वो हॉस्पिटल से घर जाती है, वहां तक ठीक है, दे गेट लॉट ऑफ पैम्परिंग, लॉट ऑफ केयर, लेकिन आगे व्हेन शी स्टार्ट्स डूइंग एवरीथिंग, देन शी डजंट गेट टाइम टू एक्सरसाइज बिकॉज शी गेट्स ऑक्यूपाइड विद द हाउस होल्ड वर्क. तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों में फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्ट बाय किड्स की you go out, exercises are equally important. Whatever you are doing, all of us will do together. तो वो टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, सो जो कुछ मिनिमल कॉस्ट है, हार्ट डिसीज को ट्रीट करने का जो कॉस्ट है उससे रिहैबिलिटेशन का कॉस्ट इज मच लेसर. और जो लोग थ्रू रिहैबिलिटेशन जा चुके हैं वो आई थिंक विल वाउच फॉर इट. सो वो एक सपोर्ट होता है. सबको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, तो वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट इज वन एस्पेक्ट. थर्ड इज फ्रेंड्स का सपोर्ट, मतलब या फिर पियर्स का. आफ्टर अ सर्टन एज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग विथ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस. वो तो अगर एक दूसरे को हेल्प करे, वेदर इट इज स्पाउस, वेदर इट इज फ्रेंड, सो दैट इज बेनिफिशियल. ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स है जहाँ पे ओपन फोरम इज प्रोवाइडेड वेयर पीपल आर कमिंग टुगेदर, डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स, दे शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज, सो दैट इटसेल्फ इज मोटिवेटिंग इनफ. देन देयर आर ग्रुप एक्सरसाइज सेशंस. हम देखते हैं कि गार्डन में देयर आर लॉट ऑफ
दादाजी दादी जी they are exercising together. So अगर घर पे बोला जाए उनके तो वो नहीं करेंगे, but because it is a social engagement activity, they come together, they do it, and that is a factor which will make them do that because they are meeting their friends. So that is also motivating for them. So these are additional factors, support and engagement के लिए, which is going to help them maintain the consistency. और ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म रिकवरी में ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप देखते हैं कि पेशेंट्स करते हैं और जिनको अवॉइड करना चाहिए? Long time mistakes again. आपने अभी बोला भी था कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वन ऑफ द फैक्टर की थोड़े टाइम बाद में लेथार्जिक हो जाते हैं। Right. जी। So I think that is if we keep or maintain the healthy lifestyle, no, so that is something which is sufficient. So the adherence could be with respect to medications, with respect to nutrition or diet, with respect to exercises, with respect to positive attitude, reducing the stress. There are studies wherein the meditation and positive imagery is turned out to be beneficial for these patients. So I think अगर ये सब फैक्टर हम मेंटेन करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन वुड बी नेचुरल, मतलब हो चुका है, दैट वाज एन इवेंट, बट इफ वी adopt to this change and adapt to this change, then I think we can definitely prevent the future events with this. And I think that is sufficient. Baki as such mistakes, very few people. There are many people जो संभल के ही करते हैं exercises. It's just that over enthusiastic people जहाँ पे we just need to know the red flags कि ये है तो कब हमें approach करना है, how to self monitor, and that's it. I think that is usually sufficient in long term surveillance because that is the minimum risk period. So उनमें इतना दिक्कत नहीं होती है. और ऐसी कोई एक पर्टिकुलर डेली हैबिट जो आप एडवाइस करना चाहेंगे पेशेंट्स को कि जो रोज करनी चाहिए जिससे अपनी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे रख सके हमेशा के लिए? Exercise. And this is not just for the heart patient, it is for everybody. So I think बच्चों से लेके elderlies तक, whether they have the heart disease, they don't have the heart disease, physical activity, higher physical activity, that is 30 minutes of moderate level activity. मतलब I should be moderately breathless. अगर आप walk कर रहे हैं तो in a minute you should be walking at least 100 steps. तो वो pace से आपका walking at least for 30 minutes in a day होना चाहिए for most of the days in a week. That is 5 times in a week. एक हाथ 2 दिन का ब्रेकअप ले सकते हो. So उतना bare minimum activity is going to prevent heart disease, prevent hypertension, that is high blood pressure, going to prevent diabetes, going to prevent a lot of cancers, is going to maintain your vitality, enthusiasm. It will keep you motivated. There are cognitive benefits, matlab it makes memory sharper. So there are a lot of benefits because it is enhancing the circulation, improving the circulation. So सारे organs को blood और better way में the blood reaches, and because of that the function improves at various levels. So everybody has to do bare minimum activity. It's just that अगर आपको कोई भी doubt है कि कितना activity करना चाहिए, you take guidance from a physiotherapist. But bare minimum एक 30 minutes का physical activity has to be there. मतलब I cannot say that कि I walk for 10 minutes या फिर मैंने office जाने के लिए bus stop is 10 minutes away तो I go walking there. So that is not exercise. That counts under physical activity, but that is not exercise. So my final question would be, how do you think that patient communities like ours, HHIF, can help people live confidently with heart disease? What contribution do you see from our side? So as I already mentioned it in my opening statement that it's a wonderful platform for educating patients in a positive way because there is a lot of information which is available on internet. But making sure that right information is going to the patient's relatives, and there is that understanding and harmony in the caregivers, healthcare providers,
and stakeholders, that is patients. So I think for that, it is a wonderful platform to bring everybody together. And that is the importance of support groups like Heart Health Foundation. Thank you very much for your words, ma'am. And so it's time now to wrap up. So as we are wrapping up, here are some simple takeaways from today's session on the basis of doctor's answers. So first of all, you need to take care of your heart after your procedure. आपको बहुत ध्यान रखना है अपने हार्ट का। किसी भी प्रोसीजर के बाद में उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, और जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे वो डॉक्टर के सुपरविजन में और उनके एडवाइस के ऊपर बेस हमें सारी एक्टिविटीज करनी है। और वो जो भी सजेस्ट करते हैं आपको कितना लाइट लेवल पे करना है, मीडियम लेवल पे करना है, ये सब डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए। आप अपने आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि आपके हार्ट को ज्यादा स्ट्रेस देती हो, क्योंकि आपका हार्ट अभी अभी एक ट्रॉमा से निकला है, तो उसको पूरा टाइम देने की आवश्यकता है। और आपके जो केयर गिवर्स हैं वो आपको हॉस्पिटल में आपके स्टे के दौरान ही आपको समझा देंगे कि आपको कौन सी एक्टिविटीज करनी है, और आपको सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग योर आईसीयू स्टेज एंड योर वार्ड स्टेज एज वेल। तो आप अपने डॉक्टर की बातों को सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, आपको घबराना नहीं है। आपका हार्ट भी एक मशीन की तरह काम करता है, और जितना एफिशिएंटली आप उसको मैनेज करेंगे, उतनी एफिशिएंटली वो आपको हेल्प करेगा आपके डे टू डे लाइफ के। एक्सरसाइज इज द की। अगर आपने अभी रिसेंटली आप उस फेज से निकले हैं या आपको टाइम हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज आपको बेनिफिट करने वाली है। तो कीप ऑन एक्सरसाइजिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है आपको पर डे देना ही है अपनी बॉडी को। जिस तरीके से आप अपने डेली रूटीन्स को करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप खाना खाते हैं, उसी तरीके से एक्सरसाइज को एक रूटीन बनाइए अपनी लाइफ का, और कम से कम 30 मिनट हर दिन अपने शरीर को दीजिए, तो शरीर भी आपको आपको समय देगा। So, on behalf of Heart Health India Foundation and SOC VPR, I sincerely thank Dr. Prajakta for her valuable time and insights, and all of you for joining us. और क्लोज करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी HHA व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, और आप वहां से हमारे डिफरेंट चैनल्स को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके अपनी जो हार्ट हेल्थ की जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने फेलो पेशेंट्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं अपने सिम्टम्स को पहचानने में, उनको दूर करने में। तो इस तरीके से हम आपको एड करते हैं। एचएचआईए का जो मिशन है वो आपके सहयोग से ही पूरा होता है। थैंक यू वंस अगेन। स्टे एक्टिव, स्टे अवेयर, एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट। So this concludes today's session. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab, and thank you, Patricia. Thank you very much.